चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल बैंकिंग का टॉपिक। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो आने वाले बैंक पीओ और सीबीओ इन सब के एग्जाम हैं उसमें इससे क्वेश्चन आना ही है, मोस्टली आता है। यू डोंट लीव इट। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको पढ़ो भी और एक दो बार इसको रिवाइज भी कर लो। इस जितने भी ये डिस्कशन हो रहे हैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे एग्जाम जोन 247 सर्च करेंगे तो आई विल बी देयर। यू मैसेज मी, आई विल एड यू इन द ग्रुप। इफ you have any queries you can also message me. If you have any confusion regarding anything, then also you can message me. Further, you can, if you like this content, you can share it to your friends, even your colleagues, if they are also preparing for. This is useful only for preparation, it is not for your entertainment, as you know. Then if you are very willing to get through in examination, you must follow it, I would say, and you will get a very top quality content over this channel. Let us start. Before going beyond the topic, we will be covering in this schedule our, as you see here, e-rupee. E-rupee is recently launched, and I have also shared a number of things, facts regarding e-rupee and दक्ष। टेलीग्राम चैनल पे ई-रूपी और दक्ष के बारे में हमने शेयर किया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल के आर्टिकल को पढ़ें, दैट विल बी मच मोर यूजफुल देन द लेक्चर इटसेल्फ। एंड एनपीसीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं वो ये सब जानते होंगे, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरली डे टू डे ऑपरेशंस में हम नोटिस नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एंड इट क्रिएट्स a lot of confusion during the exam, and generally if we want to go into a blind guess, it will always be harmful for your career, for your selection. So therefore do not go through any guesses in the examination until you are very sure about this. Okay, and we will be discussing here the concepts, important MCQs and discussion. Here in the important MCQs, I will say that a number of topics what is MCQs are containing has already been discussed. So therefore a separate MCQs will also be shared. Because in this topic during the discussion you will go through any type of what you can assume that will be coming like question in the examination, you will go through it. Okay, let us start. This is before we start, this is about me. Presently, I am working as a senior manager in a treasury department of a public sector bank. It is a very reputed public sector bank, but due to some constraints, you know, those who are working that we can't publicly announce that where we are working for. If you are very much willing, you can message me, text me over Telegram if you want to join with me. Further, here is my qualification. A number of qualifications I have already added here. Some recently qualified examinations are also there. I will update in the next few videos over it. Okay, now we will be coming to our topic. Before going through this, I will like to request you that you subscribe the channel if you find the content useful for you, for your examination. For the also share your intra groups and inter groups, your fellows, your friends. Even if anyone of you in the family is preparing for, it will be useful for them also. That is not only if I would say that it is a top content available over the YouTube or various channels, and if you like this, you must subscribe it and also encourage others to subscribe it. Okay, let us go through the topic one by one. First, we will go through NPCI, because I would say that NPCI is the mother of all digital products. ये मैं कह रहा हूँ, कहीं पे लिखा नहीं है, बट यू विल से दैट इज द मदर ऑफ ऑल डिजिटल प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट सीटीएस से लेकर के आप बैंक में जो क्लियरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां से लेकर के आज यूपीआई तक में जो कुछ भी कर रहा है, दैट्स एनपीसीआई। ट्रेमेंडस वर्क।
तो अभी एनपीसीआई के बारे में जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकरेज द सेटिंग अप ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लेरिकल के जो एग्जाम होते हैं उसमें एनपीसीआई में ये भी पूछ सकते कि इसमें पी का मतलब क्या है, पेमेंट है, ठीक है, या प्रोटोकॉल है, कुछ भी है, तो ऐसा उसमें पूछ सकता है। आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टू एक्ट एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है पता है? अम्ब्रेला देखो ऐसे होता है, ठीक है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसके अंदर सब रहेंगे, जो भी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर है। अभी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन समझ गए ना? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहीं लिखा हो तो आप ये जान जाओ कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे उससे रिलेटेड सभी रहेंगे, ठीक है। उन सब को वो कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन देगा, और जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे या ये लॉन्च करेगा उन सब के बारे में रिव्यू रिवीजन कुछ भी है तो वो वही करेगा, ठीक है। एनपीसीआई बिकम फंक्शनल इन अर्ली 2009। ये याद रखना है एनपीसीआई कब फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हुआ है। एनपीसीआई हैज टेकन ओवर द नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अच्छा, ये जानना जरूरी है नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, ठीक है। एक चीज ये जान लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, स्पेशली जो ग्रामीण बैंक के एग्जाम होते हैं ना स्केल 2 3 वाले, उसमें IDRBT क्या है, कहाँ है, ठीक है। IDRBT, IDRBT क्या है? आरबीआई का इंस्टीट्यूट है। ये क्या है कि जो भी आपके डिजिटल नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है, जिससे सभी एटीएम या सभी बैंक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो है उसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम एक दूसरे से जिससे लिंक्ड है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। इसको आईडीआरबीटी को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ सकता है। ये देखो, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। एनपीसीआई expected to bring greater efficiency by the way of uniformity and standardization in retail payments। वो कह रहे हैं एनपीसीआई इसलिए बनाया गया कि वो रिटेल पेमेंट्स में स्टैंडर्डाइजेशन लाए, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर सके कि किस तरह से रेगुलेशन सेट करे, किस तरह से पेमेंट को एग्जीक्यूट किया जाना है, और एक्सपेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग द रीच बोथ एग्जिस्टिंग एंड इनोवेटिव पेमेंट्स, ओके। इनोवेटिव पेमेंट और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स को इनकरेज करे, एक्सपेंड करे। तो ये हो गया आपके एनपीसीआई के बारे में। अभी इसके आगे क्या है? ये इट इज इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। देखो, आरबीआई तो गेस भी कर सकते हो, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन आप गेस नहीं कर पाओगे। जो बैंक में काम कर रहे हैं, स्पेशली जो ज्यादा यूनियन और इन सब में रहते हैं कि आईबीए की अभी बैठक है, वेज रिवीजन के लिए है, ये है, उनको पता होगा थोड़ा सा। लेकिन शायद उनको भी ये ना पता हो कि एनपीसीआई को बनाने में आईबीए का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो किसका है इनिशिएटिव? यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एनपीसीआई इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है? आरबीआई का और आईबीए का, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ किसके अंडर ना? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो आया था 2007 में, ये डिजिटलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। अभी हम सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने डिजिटलाइजेशन कराए, तो अगर आप बैक जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीजें बहुत पहले चालू हो गई थी। इम्प्लीमेंटेशन अब हुआ क्योंकि बहुत सारे यूपीआई देने वाले जो स्टार्टअप थे, वो उनको बाद में जाकर के ये पूरे ग्रो किए हैं। तो इस वजह से अभी यूपीआई और ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए हैं, जबकि इनका स्टार्टिंग बहुत पहले से हो चुका था। अच्छा, अब आते हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ एनपीसीआई कौन कौन से हैं। रुपे, ठीक है। रुपे ये इंडिजीनियस कार्ड है, चैनल है, आपको पता है ना रुपे? हाँ, ये क्या है? एक डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह, पोस्टपेड कार्ड प्रीपेड कार्ड की तरह यूज हो सकता है। तो रुपे का मतलब डेबिट कार्ड नहीं है। जैसे वीजा है ना,
आप क्रेडिट कार्ड भी लोगे उसके ऊपर वीजा लिखा रहेगा, आप डेबिट कार्ड लोगे उसके ऊपर वीजा लिखा रहेगा। तो वीजा इज नॉट ए कार्ड, दैट इज ब्रांड नेम, दैट इज अ चैनल, यू कैन से द सेम एज द चैनल इज रुपे। ओके, रुपे is well poised to explore innovative payment opportunities, okay, such as contactless, offline, online. These payments are also supported by रुपे। तो रुपे क्या है? इंडिजियसली डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम है। रुपे इज एन इंडिजीनियसली मतलब अपने ही कंट्री में, अपने ही घर में बनाया हुआ पेमेंट सिस्टम है। All RuPay cards will now have functionality of NCMC। NCMC कार्ड कौन से होते हैं? जो लोग फिनेकल 10x पे या फिनेकल में काम कर रहे होंगे उनको पता होगा, जब कस्टमर को एटीएम एक्टिवेट करते हैं तो उसमें NCMC और NCMC दो टैब आते हैं। उनमें अगर गलत टैब चूज कर लिया तो उसका एटीएम चलेगा नहीं। ठीक है, NCMC है। ठीक है, NCMC होते हैं नो कॉन्टैक्ट वाले कार्ड, कॉन्टैक्ट लेस मतलब ये मशीन रखा रहेगा पीओएस वाला, आप इसके पास में ले जाओगे, ये RFID होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से ये लोग इसको कार्ड को कैच करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। ओके, अब आते हैं IMPS पे। अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसका पीडीएफ जो शेयर्ड है आप उससे पढ़ लो, क्योंकि अगर हम एवरी लाइन, ईच एंड एवरी लाइन आई विल बी कोटिंग हियर, तो ये टाइम किलिंग भी होगा और आप बोर भी हो जाओगे। मेरा काम है इसमें अगर कोई एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं तो आपको समझा दें। IMPS को इमीडिएट पेमेंट सर्विस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग एम का मतलब सोचते हैं कि एम का मतलब मोबाइल है। ये IM जो है वो पूरा है, ये ऐसा है एक्चुअली, IMPS, IM एक साथ है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इंडिया टू बिकम लीडिंग कंट्री इन रियल टाइम इन रिटेल सेक्टर, ये रियल टाइम पेमेंट होता है IMPS। तो इंडिया वैसे भी अभी लीडिंग है, शायद चाइना ही थोड़ा इससे आगे है, बाकी डिजिटल पेमेंट में इंडिया अभी सरपास कर रहा है। NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये पुल और पुश दोनों ट्रांजैक्शन करता है, मतलब आप इसको एंट्री ले सकते हो और इसी से दूसरे आदमी के लिए, दूसरे एंट्री के लिए आप एंट्री पंच भी कर सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक माइंडेड प्लेटफॉर्म भी है, अगर आप किसी भी बैंक से ECS कटाने के लिए अपना चेक दिए हैं तो NACH के ही थ्रू होता है। ज्यादातर बैंक्स में जब मैंडेट देते हो आप तो आपका जो क्लियरिंग हाउस है वो अपडेट कर देता है, मोस्ट ऑफ टाइम ये सेंट्रल ऑफिस से होता है। कुछ कुछ जगह ये जो जोन बेस्ड है, जिस दिए वो जोन भी कर सकती है, उनको ऐसा ऑथराइजेशन है। लेकिन अल्टीमेट ये ऑथराइजेशन होता है ब्रांच से कि हाँ ये कस्टमर ने, आप इस कस्टमर ने मैंडेट दिया है कि इसका EMI मंथली कटना चाहिए। जैसे आपको 2000 मंथली जमा करना है तो आपको एवरी मंथ 2000 का चेक देने की जरूरत नहीं है, एक चेक दे दो, एक मैंडेट फॉर्म दे दो, कैंसल्ड चेक उस पर साइन कर दो, पीछे लिख दो, बस, दैट विल ऑटोमेटिकली बी अपडेटेड। ये AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आधार पे अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेते हैं ना, आधार नंबर दे दिए, अंगूठा लगा दिए, पैसे निकाल लिए, 10,000 तक निकाल लेते हैं एक बार में। ठीक, तो ये यही है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जहाँ जिस ब्रांचेस में BC काम कर रहे हैं उनको पता होगा, उनके पास जो मशीन होती है BC के पास, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के पास, वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की मशीन ही होती है। ये इंपॉर्टेंट है। NFS पहले भी बता चुके हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATM मशीन्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। एक ATM दूसरे ATM से होता है, क्यों? क्योंकि मान लो आपने बैंक ऑफ इंडिया के ATM में गए और यहाँ से पैसे निकाले, आपका अकाउंट PNB में है, तो आपको इमीडिएट मैसेज आ जाता है जैसे ही पैसे निकलते कि आपके अकाउंट से पर, तो ये स्विच टू स्विच कम्युनिक, इस स्विच के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, सब ATM एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं UPI पे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, UPI सब लोग यूज करते हो, QR कोड के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करते हो, वही सब UPI है।
भारत बिल से पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? ये बिल्स पेमेंट के लिए है। बिल पेमेंट मतलब बिजली का बिल, गैस का बिल, ऐसा बिल जो हर महीने आता हो या एक टाइम पे आता हो लेकिन वो बार बार आता हो। ठीक है। कैसा? जैसे फास्टैग का रिचार्ज यहाँ लिखा है ना, ये मंथ में तो नहीं आता लेकिन एग्जॉस्ट होने के बाद आपको रिचार्ज करना है। गैस, गैस मंथ में नहीं आता। क्यों? जहां पर पाइपलाइन है वहां आ सकता है मंथली बिल। जहां पर सिलेंडर है, अगर वो सिलेंडर 2 महीने तक चला तो 2 महीने बाद गैस भराना है, 1 महीने चला तो 1 महीने बाद भराना है। बट वो रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब बार बार उस पेमेंट को आपको करना है, तो उसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। अभी तक सबको मैंडेट कर दिया गया है, एवरी वन हु इज attending or collecting the bill collection monthly or any recurring bill must have to onboard on Bharat बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है। ये है NETC। NETC जान, अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ये है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। जो फास्टैग आप देखते हो, फास्टैग लगा होता है और दूर से ही वो आपका डिडक्ट हो जाता है, मैसेज आ जाता है और टोल गेट खुल जाता है आपके लिए। ठीक है। तो ये NETC के ही थ्रू होता है। फास्टैग आर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स विच आर अफिक्स्ड ऑन व्हीकल विंडशील्ड। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये तो डिटेल से इसका आप ये पढ़ लेना। *99# ये पूछा जा चुका है, ये नंबर ऑफ टाइम्स फिर से डाल लो। USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है *99# को। इनिशियली नवंबर में इसको लॉन्च किया था लेकिन अभी ये यूज में नहीं है। अभी आप *99# अभी यूज में नहीं है, इस वजह से हो सकता है ना भी पूछा जाए। ठीक है। इसका, अब इसमें हम पूछ रहे हैं आपसे यू का मतलब क्या है, आप बताना। सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है तो मैं बता देता हूँ, यू का मतलब आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ कि यू का मतलब इसमें क्या है, आपको पता है कि नहीं है। भीम आधार पे, भीम आधार पे क्या है? इनेबल्स मर्चेंट टू रिसीव डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स ओवर द काउंटर थ्रू आधार आइडेंटिफिकेशन। आधार आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप पैसा जो डिपॉजिट करते हो, एक्चुअल में ये कैश डिपॉजिट नहीं है, ये मर्चेंट्स को टू रिसीव डिजिटल पेमेंट्स, आप डिजिटल पेमेंट उनसे ले सकें आधार के थ्रू, उसको कहते हैं भीम आधार पे। इट अलाउज फॉर एनी मर्चेंट एसोसिएटेड विद एनी एक्वायरिंग बैंक। मतलब अगर आपका खाता SBI में है मान लो, और आपका जो जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं उसका बैंक ऑफ इंडिया में है, या PNB में है, या IOB में है, या महाराष्ट्र बैंक में है, या बड़ौदा बैंक में है, कहीं पे है, तो आपके अकाउंट से कट के पैसा इमीडिएट उसके अकाउंट में भीम आधार के थ्रू चला जाना चाहिए। अच्छा, इसमें जरूरी क्या है? व्हाट इज मैंडेटरी फॉर भीम आधार पे? तो आपके अकाउंट में आधार सीडिंग होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है, आप बैंक जाकर के उसे बोलो कि सर मेरा ये करो, आप आधार सीड करो, मेरा पेमेंट नहीं हो। ई रूपी। ठीक है। अच्छा देखो, ई रूपी सब न्यूज चैनल पे भी आ गया, सब जगह आ गया, लेकिन अभी तक सब लोग ये सोच रहे हैं RBI ने इसको बनाया। ठीक है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड पार्टनर बैंक्स हैज लॉन्च्ड ई रूपी। अब समझ में आया? इतने लोग लगे हुए हैं ई रूपी को लॉन्च करने में। ठीक है। अब आते हैं UPI 123। अच्छा, ई रूपी पे एक मैंने आर्टिकल शेयर किया है ऑलरेडी इस टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको श्योर पढ़ो। और RBI का नोट्स जो ड्राफ्ट है ई रूपी पे, उसका पूरा का पूरा PDF ही शेयर किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लो। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कम से कम लॉन्च डेट याद रख लो, लॉन्च डेट याद कर लो।
और किसने लॉन्च किया। अगर देखो, अगर उसमें आरबीआई होगा तो एनपीसीआई नहीं होगा, एनपीसीआई होगा तो आरबीआई नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब चीज, सब ऑप्शन में एक सब चीज दे देगा और आपको चार ऑप्शन सही करने हैं, दो ऑप्शन सही टिक करने हैं, ऐसा नहीं होगा, एक ही होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लो कि एनपीसीआई इज आल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑफ ई रूपी। ठीक है। यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फोन यूजर्स। मतलब जिसके पास वो स्कैन और वैसा टच स्क्रीन फोन नहीं है, वो यूपीआई 123 पे यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लो। ठीक है। अब आते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस पे। ये सब लोग ब्रांच में कर ही रहे होगे और जानते रहे होगे, तो ज्यादा इसमें बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, सब लोग ग्रॉस का मतलब जानते, क्या जानते हैं कि पूरा। ठीक है। सब लोग जानते हैं ग्रॉस का मतलब पूरा, जबकि ग्रॉस का मतलब पूरा जैसा कुछ नहीं है। क्यों? ग्रॉस का मतलब द सेटलमेंट ऑफ फंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, रख लो, ये पूछ सकता है। ठीक है, नोट कर लो। द सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर का ट्रांसफर एक कस्टमर इंडिविजुअल के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई वेट करेगा दो कस्टमर का आ जाए तो 8 लाख एक साथ ट्रांसफर कर दें या 2 लाख एक साथ ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं होगा। वन कस्टमर का जो ट्रांसफर है वो आरबीआई के थ्रू इमीडिएट एज एन इंडिविजुअल सेटल होगा। इसी वजह से ये ग्रॉस सेटलमेंट होता है। मतलब एक आदमी का पूरा सेटल हो गया एक बार में, एक बार में एक आदमी, याद रख लो। ठीक है। वन पर्सन एट अ टाइम, वन ट्रांजेक्शन एट अ टाइम रिफर्स द मीनिंग ऑफ ग्रॉस इन आरटीजीएस। real time gross settlement. Real times means they are instructions are executed immediately at the time they are received at the end of RBI। जैसे ही आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शंस हिट होती हैं, इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अच्छा देखो, आरबीआई के पास बैलेंस अगर आपके बैंक का नहीं है, मान लो आपके बैंक के खाते में पैसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर का पैसा तो बैंक खाते में जाता है, आरबीआई खाते में तो इमीडिएट जाता नहीं है, आपके पूल अकाउंट में जाता है। देन आल्सो इट विल बी सेटल्ड, then also it will be settled. Later, RBI will recover the funds from the bank. Generally, RBI do not need to recover because bank automatically reconcile all the entries. ठीक है। चलो आगे आते हैं। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन में कोई अपर कैप नहीं है, लेकिन मिनिमम कैप है कि 2 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है। और नेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लाख से नीचे का नेफ्ट करना है, नेफ्ट भी आप 5 लाख का कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए वेदर वी कैन डू एनईएफटी ऑफ 5 lakhs, यस, यस। अच्छा, डिफरेंस क्या है? 5 लाख का एनईएफटी करें और 5 लाख का आरटीजीएस करें तो एनईएफटी करोगे तो ये बैच में जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने अभी इंस्ट्रक्शन भेजा और अभी 5-10 मिनट में उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आरबीआई कुछ ट्रांजेक्शन इकट्ठे कर लेगा, जनरली हाफ आवर की बैच होती है। हाफ आवर की बैच का मतलब ये थोड़ी है कि आपको हाफ आवर, मान लो हाफ आवर की बैच अभी है, 12:30 बजे की है। ठीक है। अब आपने 12:31 पे ट्रांजेक्शन किया है, अब वो 1 बजे वाले बैच में जाएगा। ठीक है। तो हाफ आवर का बैच है, उसके बाद ही ये जाएगा, वो बैच में जाएगा। लेकिन आरटीजीएस का क्या है? जैसे ही ये हिट हुआ, वो आरबीआई पे हिट हुआ, ये वैसे ही आरबीआई दूसरे कस्टमर के अकाउंट में पैसा डाल देगा इमीडिएट। उसको बैच से कोई मतलब नहीं है, इसको इंडिविजुअल कस्टमर से मतलब है, इंडिविजुअली पैसा ट्रांसफर होगा। यही नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस है। 2 लाख वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 लाख वाला कॉन्सेप्ट केवल ये है कि आरटीजीएस, वैसे भी भाई अगर एक कस्टमर का इमीडिएट तुरंत सेटलमेंट करना है तो आरबीआई को कुछ न कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना। नहीं तो 100 रुपए वाला भी कहेगा कि मुझे आरटीजीएस करके अभी तुरंत पैसा चाहिए।
बैंक में इतना स्टाफ भी नहीं है, किसी भी बैंक में, कोई भी बैंक हो, स्पेशली पब्लिक सेक्टर, तो कुछ तो कोई रखना पड़ेगा ना। ये है। लेकिन अपर कैप वाला जैसा कुछ ट्रांजेक्शन का नहीं है। अच्छा, ये है 24x7 इंटू 365, मतलब पूरे साल 24 घंटे सातों दिन, रविवार शनिवार से कोई मतलब नहीं है, नेफ्ट आरटीजीएस होगा। अच्छा ये बताओ, अगर बैंक बंद रहेगा तब कहाँ से होगा? तब क्यों लिख दिया ये सातों दिन होगा? आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके नेफ्ट आरटीजीएस सेलेक्ट करके भी आरटीजीएस नेफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये 24/7 अवेलेबल है। रिमीटर नीड नॉट यूज फिजिकल चेक डीडी, सही बात है। अगर ब्रांच में करते हो तो फिजिकल चेक जरूरी है, लेकिन अगर आप वैसे करते हो बाय मोबाइल तो फिजिकल चेक जरूरी नहीं है। अब यूटीआर नंबर पूछा जा चुका है। यूटीआर नंबर क्या होता है ये जान लो। यूटीआर नंबर इज ए 22 डिजिट कोड। ठीक है, डिजिट कोड नहीं है ये, कैरेक्टर और डिजिट का मिक्स होता है। ठीक है, 20 डेज होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का डिटेल आएगा, आईओबी है तो पहले आईओबी आएगा, एसबीआई है तो एसबीआई आएगा, एसबीआई एन आएगा, नेफ्ट है तो ऐसा करके। तो ये यूटीआर नंबर होता है। ठीक, क्या होता है इसमें? अल्फाबेट और कैरेक्टर्स, डिजिट्स मिले हुए होते हैं, और इसको मिला करके 22 कैरेक्टर का कैरेक्टर सेट बनता है, उसको कहते हैं यूटीआर नंबर। ठीक है, जैसे आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है, एक तरह से आप उसे वही मान सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आईडी की तरह काम करता है। लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, और इम्पोर्टेंट भी है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? LEI, ये क्या है? ये ऐसे ट्रांजैक्शंस जो 50 करोड़ और ऊपर के हैं उनके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्राप्त करना जरूरी है। बिना लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के वो ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। ये 20 डिजिट्स का कोड होता है। ठीक, आरटीजीएस और इसकी लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है, और चार्जेस लिखा हुआ है। चार्जेस ये जो लिखा हुआ है ये मैक्सिमम चार्जेस हैं, मतलब बैंक इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, इससे कम लगा सकता है। तो जनरली बैंक इतना ही लगाते हैं, वो कम नहीं लगाते हैं सभी बैंक्स में। 5 लाख वाले पे 50 से ज्यादा नहीं है। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब अगर जीएसटी या कुछ लगना है तो उस पे लग जाएगा। ठीक, आगे आते हैं एनईएफटी क्या है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, की फीचर्स, की फीचर्स इधर लिखा है कि हाँ, एवरीडे अवेलेबल है, 24/7 365। नो चार्जेस टू सेविंग बैंक कस्टमर्स फॉर ऑनलाइन एफटी ट्रांजेक्शन। देखो, बैंक में करोगे तो ट्रांजेक्शन का चार्जेस लगेगा, बैंक लेती है, लेकिन अगर मोबाइल से करते हो एनईएफटी तो नहीं होगा। तो अगर कभी मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग से, तो आईएमपीएस न करके आप अगर नेफ्ट करोगे तो पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, लगता है तो आप कंप्लेन करके वापस ले सकते हो। अब आते हैं आईएफएस कोड। आईएफएस कोड क्या है? वो एक बैंक के ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस होता है ऑनलाइन का। मतलब ये 11 डिजिट का कोड है जो किसी एक पार्टिकुलर बैंक की ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है। मतलब अगर आईएफएससी कोड दिया है तो आप उससे एग्जैक्टली ये बता सकते हो कि बैंक कौन सी है और उसकी ब्रांच कौन सी है, और उसके साथ अकाउंट नंबर भी अटैच होता है। तो अगर बैंक और ब्रांच पता चल गया तो उसमें अकाउंट नंबर इजिली पता चल जाता है, और अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड से ही पैसा जाता है। ठीक है, कभी भी आप अगर मनोज की जगह दिनेश नाम लिख दिए हो और अकाउंट नंबर आईएफएस कोड सही डाल दिए हो, तो इस न तो भेजने वाली बैंक को पता चलेगा और न तो रिसीव करने वाले को कभी कभी पता चल जाता है, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। तो वो अगर से रिसीव कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं किसका नाम है। और अगर ऑटोमेटिक क्रेडिट जो हो जाता है, जो जनरली वही होता है, तो आप गलत नाम भी लिख के अगर फॉर्म में भेजोगे तो पहुंच जाएगा। एंड सेकेंडली, इसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ठीक, बाद में हम बोलो कि हमने तो मनोज लिखा था सर, उसमें दिनेश नाम था और आपने भेज दिया, तो वो पता ही नहीं कर सकता। एसबीआई अकाउंट वो कैसे पता चलेगा दिनेश का है किसका है? उसका काम है चेक करना, आपने साइन सही किया, फॉर्म सही भरा, पैसा गया। बाकी आप जानो आपने क्या भरा है क्या नहीं भरा है उस पे। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जिस आदमी का खाता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन याद रख लो, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। इंटरव्यू में पूछ लिया कि एक आदमी आया, ठीक है, जिसको वॉक इन कस्टमर बोलते हैं। प्रमोशन एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, वॉक इन कस्टमर का। तो उसका नेफ्ट आप करोगे कि नहीं? आंसर है यस। क्या? 50,000 रुपए तक का कर सकते हो। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के लिए कैश में यही 20,000 है। नेफ्ट के लिए 50,000 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये जान लो। चलो, ऑपरेटिंग आवर्स क्या है? राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। ठीक है। चार्जेस फॉर एनईएफटी पढ़ एक बार देख लेना आप कितना है, क्या है। पेनाल्टीज फॉर डिले ट्रांजेक्शन, तो 3% और 5% का जो रेट लगता है, ठीक है, वो देख लो। 2% एलएएफ से ज्यादा, अगर 3% है एलएएफ तो 2, अगर उसमें ऐड किया तो 5 हो जाएगा। तो ये भी आप इसमें से देख लेना, नोट्स में से, ये शेयर कर देंगे ग्रुप में। आईएमपीएस ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ? 2010 में हुआ। श्यामला गोपीनाथ, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई मुंबई, इन्होंने लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया था और लॉन्च किया था। कब? 2010 में। तो अब अगर ये कोई बोल रहा है तो 2014 में बीजेपी आई, तब डिजिटल वो चालू हुआ और बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो उसको थोड़ा समझा देना। आई एम नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइन टू एनी वन, बट किसी चीज को इतना बुरा भी मत कहो कि मतलब वो कुछ ने कुछ किया ही नहीं। आप आईएमपीएस देखो, कब 2010 से स्टार्ट हुआ है। 2010 समझ रहे हो आप? शायद ही रेयरली किसी के पास टच वाला मोबाइल था, रेयर। अभी सबके हाथ में वो चाइना मोबाइल घूम रहा है ना, तो सब डिजिटलाइज हो गए हैं, सब अपनी डिजिटल इंडिया और आटा दाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जानो, सब अगर जानोगे तभी कहीं पे बोल पाओगे, जान पाओगे, चीजों को कम्युनिकेट कर पाओगे। आईएमपीएस चालू किया उस समय ये थी कांग्रेस। आई एम नॉट सेइंग वेदर बीजेपी गुड और कांग्रेस गुड, बट यू शुड नो दैट व्हाट वाज द इनिशिएटिव। ओके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इसी कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखो, एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल मनी आईडी। अच्छा, इसमें आई का कोई फॉर्म नहीं है, आईडी का है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। ये कितने डिजिट का कोड होता है? ये 7 डिजिट नंबर होती है। तो ये कौन सा कितने डिजिट का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसको देख लो। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी क्या है? जरूरी नहीं है, हो सकता है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो मोबाइल नंबर एमएमआईडी से पैसे चले जाते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है? एवरी डे आप 5 लाख, आप आईएमपीएस एवरी डे 5 लाख तक का कर सकते हैं। या तो आप सिंगल ट्रांजैक्शन में कर दो 5 लाख, या आप ए नंबर ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में करो, बट आप मैक्सिमम 5 लाख ही कर सकते हो आईएमपीएस पर डे। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी पूछ लेता है। तो इसमें एच का नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा तो आई का पूछेगा, क्योंकि बी एच एक साथ ही है भारत। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये क्या है? पेमेंट ऐप है दैट लेट्स यू मेक सिंपल इजी क्विक ट्रांजेक्शन्स यूजिंग यूपीआई, जो यूपीआई के थ्रू इजीली ट्रांजेक्शन्स करने की आपको सुविधा देता है। ये किसने डेवलप्ड किया था? एनपीसीआई ने डेवलप्ड किया था। और कब लॉन्च हुआ था ये? दिसंबर 2016 में, 30 दिसंबर 2016 में। ओके। कौन है? एनी वन विद बैंक अकाउंट, रजिस्टर मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड, ये तीनों चीज होने चाहिए। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये आ गया, व्हाट इज नेसेसरी टू यूज भीम एप्लीकेशन? बैंक अकाउंट यस, मोबाइल नंबर यस, डेबिट कार्ड यस। क्यों? डेबिट कार्ड का डिटेल डाल के आप रजिस्टर करते हो, मोबाइल नंबर होता है, उसी से लिंक होता है, ओटीपी आता है, आपका रजिस्टर होता है। और बैंक अकाउंट तो जरूरी है, क्योंकि उसी से पैसा कटता है और उसी में डिपॉजिट होता है।
ठीक है। कितना है? अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन और मैक्सिमम 1 लाख है। जैसे IMPS में 5 लाख पर ट्रांजेक्शन है, 5 लाख लिमिट है। ऐसे ही भीम में 1 लाख पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है और 1 लाख पर डे ही आप भेज सकते हो। चाहे आप वो 10 ट्रांजेक्शन में भेजो, 20 ट्रांजेक्शन में भेजो, या एक ही ट्रांजेक्शन में आप 1 लाख रुपए भेज दो। देखो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में रखा हूँ, बाकी तो सब MCQs मैंने ये करा ही दिए कि कितना लिमिट है क्या है। UPI और IMPS में क्या डिफरेंस है बताओ? जब IMPS था और आप उससे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, कोई आपको भी कर सकता है, तो UPI क्यों आया? यूपीआई क्या है? पुश और पुल दोनों सपोर्ट करता है। पुश और पुल मतलब मैं बताता हूँ। पुश और पुल का मतलब हो गया कि यूपीआई के थ्रू आप पैसा भेज सकते हो या आपसे कोई पैसा मांग भी सकता है। जैसे आप कभी अमेजन या कहीं पे पेमेंट करते हो तो आपको एक लिंक आता है, रिक्वेस्ट आता है बैक अमेजन से। अगर आप यूपीआई डाल के अपना यूपीआई आईडी डालिए, जैसे अपना मोबाइल नंबर @यस बैंक लिमिटेड या YBL या SBI या कुछ भी ऐसा है, तो आप अगर वो डालोगे तो वो एक रिक्वेस्ट आता है, मतलब अमेजन ने आपको यूपीआई का ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया। आपने नहीं किया, आपने तो डाला कि मेरा यूपीआई आईडी ये है। लेकिन IMPS में क्या है? आप केवल भेज सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, आपका यूपीआई आईडी अगर कुछ है और मुझे पैसा लेने हैं, तो मैं अपने एप्लीकेशन से, यूपीआई से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो आपके यूपीआई में एक मैसेज आएगा। क्या? कि ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए का। क्या आप ये पेमेंट करना चाहते हैं? अब अगर आप उस पे यस करके ओके करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप उसे डिक्लाइन करना चाहते हैं तो डिक्लाइन कर सकते। जबकि IMPS में क्या है, या तो आप यहाँ से मांग नहीं सकते 5 लाख रुपया, कि दूसरे के सिस्टम में IMPS में कोई मैसेज पुल हो जाए, पुश हो, यहाँ से जाए और आप वो वहां से एक्सेप्ट कर ले, तो ये चीज नहीं है। बाकी चीजों में IMPS भी इमीडिएट रियल टाइम ट्रांजेक्शन कर रहा है और वो भी कर सकता है। ठीक है। MCQs इन डिस्कस, तो मेनली यही MCQ डिस्कस करना है। बाकी लिमिट कितना है क्या है वो तो मैंने कर दिया है। कुछ MCQs बन गए हैं, 2-4 और बनाना है तो वो मैं अलग शेयर कर दूंगा। बहुत सारे MCQs बन रहे हैं और कुछ तो जो बैंकिंग के मंथली हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, तो वो सब आप देख सकते हो। थैंक यू आपको देखने के लिए, और मैं कहता हूँ इसको सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए। ठीक है। और May the Almighty God take you to the path of success and you all become successful. Thank you for watching this video. More videos are coming soon. Enjoy your learning with us, with the team, and with me also. Thank you.